Reckoner Television. دغه روان دی امیر سلطان ګجر بیګا کراچۍ کې په جاز کې راغی اوس به انشاءالله ورسي چې د خپلو مشرانو منګه استقبال ښه په صحیح طریقه وکړو او زما تعارف زه تاسو سره په آخر کې کومه زه د ضلع انګلي د سوات نه چې کومه ضلع جدا شوې ده د هغې اوسېدونکی یم زما نوم فضل قادر کټانخیل یم او زه ریټایر استاد یم پی ایچ ډي د پرایمري سکول نه نو بهرحال دومره قابلیت زموږ نشته تاسو نه معافي غواړم که چېرته هم څه غلطي شي زما په خبرو کې نو هغه به زما خپل د عقل کمی ستاسو په هېڅ کمی نه لیکن د برادرۍ زمونږ دا شوق دی چې یاره موږ یو بل وپېژنو د انجمن ګجران مطلب دا نه دی چې موږ د چا مخالفت وکړو خو دا دې دپاره مولي فتح الدین تاسو چې کوم پټوي نه پټکی والی دی چشمې په سترګو دي دا د سوچ کړی چې دا قوم یو د تعمیر په لار روان شي دوی یو بل وپېژني او دوی د ملک د تهذیب او طریقې وپېژني دا نه دی چې د چا مخالفت دپاره یو نو زموږ دپاره دا پکار ده چې موږ د نورو ټولو قومونو د ځان نوم زیات قدر وکړو خو یو د افسوس خبره زموږ کې دا شته چې د فیسبوک والا کسان چې دي هغو صرف خپل نوم په دې هوا کې ولیږي او زه یو غټ سره یم لیکن هغه چېرته دا نه کوي چې دې ځای نه لاړ شي بل کلي کې کښېني او خپل مشران کشران وپېژني نو موږ له عملي کار په کار دی لکه څنګه چې په کراچۍ کې د زمونږ هلته پروګرام د الهي بخش صاحب د خدای بخښي د هغه په پروګرام کې سردار یوسف صاحب زمونږ د مانسیري وفرمایل اعزاز کردار سے ہوتا ہے کچھ کر کے دیکھاو هغه یو ډېره مطلبي خبره کوي چې تاسو کردار خپل دغه کوئ بل دا خبره ده اهمه چې زموږ خلک په مختلفو پارټو کې دی زه ځکه هم دا ټولې پارټۍ زموږ دي خو هغوی د افسوس خبره دا ده ډېر کم به داسې چې هغوی د خپل د پارټۍ د مشر نه د صوبایي یا د قومي د ټیکټونو د فارمونو مطالبه نه کوي خو سیا به بس ته به ولاړې او زه به درپسې یم نو آخر ستاسو هم حق دی که نه تاسو هم مطالبه وکړئ پارټۍ کې تاسو خدمت کوئ نو تاسو مطالبه وکړئ چې سیټونه تاسو هم واخلئ تاسو هم لاړ شئ چېرته مساواتو کې خورا شو نو که چېرته زموږ د قوم سره په قومي او په صوبایي اسامبلۍ کې نه وي نو موږ له به خبره هلته به بس د قوم څوک رسوي نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې هر ځای کې چې ټیک یئ په خپل ځای ټول ټیک یئ لیکن بهرحال د خپل حق مطالبه جایزه چې څنګه ستاسو په منشور کې لیکن نن خبره نن زمونږ صرف د باباجي په باره کې ده او د یو بل سر د تعارف په باره کې ده نو خبرې ډېرې خو هلته سیکرټري صاحب وکارېږي زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم دعا کوم الله دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي او تاسو چې څه شرعي حاجتونه د خدای پوره کړي او چې همیشه موږ یو بل سره داسې په وروره په مینه محبت میلاویږو د دې نه وروسته زه په مختصر ټیم کې ملک انځرګل صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپل مختصر خبرې موږ سره شیر کړي انځرګل صاحب جی اور پینڈال میں سامنے مجھے جو لوگ نظر آتا ہے ہماری قوم کا ہے یا ہور وغیرہ ہے تو ساروں کو میں دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں تو ساروں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اتنا قیمتی وقت دے کر اس تعزیت میں شامل ہوا ہمارے ساتھ آج کا میپل جو ہے ہمارا کچھ سیاسی نہیں ہے اس کا جھنڈا بھائی نے رکھا تو حاجی صاحب مرحوم اللہ اس کو جنت الفردوس میں داخل کرے تو اس کی تعزیت کے لیے ہم ادھر جمع ہوا ہے اس میں ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یہی ہوگا انشاءاللہ دین اور موت کی تذکرہ کرنی اور قبر کو یاد کرنا انشاءاللہ یہ ساروں کو پتہ ہے تو سارا کا عقیدہ ہے ہم سارے دنیا سے انشاءاللہ جائیں گے پتہ ہے نا زبان پر سمجھ آتی ہے بھائی سو گجر بھائی تو سارا سمجھتا ہے چودھری صاحب سمجھ آتا ہے نا آج کی میں گجری میں بات کرتا ہوں آج ہمارا جمع ہون جکڑو ہے تعزیت کا کانفرنس پوئی اس کو نہ تعزیتی کانفرنس دریو
पकार इनू है जी हम कबर की ते मर की ते जनकदन की ते अखर की ते सवाल जवाब की इन गलों न कर लिए के सोन जानो इंशाल्लाह मेपल मारो मरो नख वेगी खैर और बरकत वेगी कड़ा मेपल में जी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद किया जाए कड़ा मेपल में कुरान करीम की हयात को तिलावत हुए कड़ा मेपल में दुआ की ताज़ियत हुए उस मेपल पर अल्लाह का डाते नूर और रहमत बरे सुभान अल्लाह को हबे सुभान अल्लाह। मेरा दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात पैदा करे ज़मीन आसमान पैदा किया है ज़मीन आसमान अल्लाह ने पैदा किया है इसमें रंग रंग कायनात लगाए 5 मिनट टाइम मुझे दिए 2 मिनट रंग रंग कायनात लगाए सारी कुछ ख़त्म हो जाएगी हर कुछ ख़त्म हो जाएगा एक इंसान और जन्नत अल्लाह का डात अल्लाह का दरबार को पेश हुएगो अल्लाह को तपोस करेगो मार में देते तो आप ये गटियों क्यों लाए थे क्यों गटियों क्यों लाए जवानी में देती थी जवानी काम असर कहीं तब नहीं इल्म में देते तो इल्म किस तरह अपनायो इल्म पर कितना अमल कियो इल्म पर कितना अमल कियो। मेरा दोस्तों फानी दुनिया है हर शे खत्म होने वाला है अल्लाह कुरान करीम में फरमाए एक ऐलान फरमाए रब्बी ज़ुल जलाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह तबारक व तआला को यो वादो यो ऐलान है जहाँ बगैर मेरे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन आने वाला है रब के नाते रब का पुलिस है के ना फरिश्ता है के ना मुलाकात होने वाला है वो का कौम हर कौम के ना तारुफ दराए जनाब से हर कौम के ना है का डाड़ा है का लिसा है का काड़ा है का चिट्टा है का निका है का बड़ा है इन सारा के ना है किसने खानत पर जिंदगी लगाई एक वादो करेगा मेरी गला की आखिरी मकसद एक भी आएगी एक वादो करेंगे इंशाल्लाह मेरी गाल बहुत बजे सारा का ना तमाम याद करो कौन मुझे सारा बजे लगा मुझे घाट लोग बजे लगा अपने शक्ल एक वादो करेंगे इंशाल्लाह का खैर थी जिंदगी मुझ चाल के थोड़ी रहे सच करेंगा हो जाए सारे इंशाल्लाह दो को नहीं कर संगा इंशाल्लाह खयानत नहीं कर संगा इंशाल्लाह मरन हर वक्त याद रखेंगा कड़ा इंसान तची अल्लाह ने मौका दे तो कौम की खिदमत को तो हर कौम मजी है इस मारा नामो सारा कौम हमारा लोग बैठा रहेगा सारा तने सलाम किए पहलते हर कौम मजी है कड़ा लोग ना कौम ने खिदमत को मौका देते है उसी बेईमानी के दयानतदारी के वो हमारा दुनिया पर भी छोड़े आखिर में भी छोड़े इन है का नहीं इशाता। मेरा दोस्तों आज की बयान की हमारी मकसद यह है जी हम अल्लाह का हुक्म के बीच जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा के अंदर अपना कौम की खिदमत अपना मुसलमान का माशरा में अदाबी ज़िंदगी उसूली ज़िंदगी कुरान के नाम आबिस्ता जोड़ना अलम इकबाल एक शेर में के है वे माजिज़ थे ज़ुमानों में हामिल कुरान होकर हम जलील और ख्वार हुआ तारों के कुरान होकर समझ आई एक गल दूजी करूँ कि घर मुसर जो करूँ जब देखे घर का चोर लेंगे तो सीढ़ी कही थी घर की एक घर में फलाना कमरा में खजानो है अगर चोर लेंगे उसमें देखिए दो कमरा में पूछ सोता है बूढ़ी तीजा कमरा में सुती है बूढ़ी का कमरा में खजानो पियो तो वो बड़ी बूढ़ी ने की बूढ़ी उठ गई क्या करे आके चुप को मैं तलवार कर उसी के मेरा मन ना कोई खजाना खजाना यूँ जरिए सारा नीचा हमारा गुना कहे जी कद खजाना उठे माए चावर में गलियो बूढ़ी ने क्यों बचा मेरी गला सुने मैं आज कदी तो कोई तेरे शनि बुजुर्ग इंसान बैठो ही नहीं थो तेरे शनि पाक बंद में तो का गल मजबूर किया मेरी एक जवाब में सुन के चलिए बचा के तेरी चोरी हो गई तेरा कम हो गया कि हाँ हो गया मेरे को जवाब सुन के चलिए क्या जवाब है माँ को अगर मैं ख्वाब देखी है तो ख्वाब में हुए गिड़ा गुना ली में हमारा ख्वाब की ताबीर न दस के चलिए गल की मकसद है यारों उसी की को बचा तू की मकसद तू को की उसी की माँ तू को की ताबीर मंगे तो आखिर मुँह रात में गिड़ा गुना ली में जौहरिया जौहरिया मैंने आवाज नहीं तो जौहरिया कौन होगा बूढ़ी ने बड़ी टांग मारी पूत नहीं सुन ली पूत उठ के देखिए चोर सामान नहीं चले उसे पोता का ना पिए मारे 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 नो वो चोर आ रखे बुढ़ी के ना मार दे चोर के छोटी माना पिया मारे आखे चोर दे तो उसके तू किम के थे माना पिया मारे आखे उम्र आप लोग कम यो तो चोरी करन तो खाब की ताबीर अलीमा हुकम तो मैं प्राय कम क्यों न मारन खदा न प्राय कम नहीं कर सका इकड़ा कम खाब नहीं था जो खाब की ताबीर नहीं कर सका इंशाल्लाह का खैर ठीक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यहाँ आज जिस ताज़ियत में मेरे कौम और हमारे अंजुमन गुजरां
के जुमला कायदीन जनाब सरदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, चौधरी नासिर साहब, मलक आसफ साहब, खादिम शंगला जनाब अमीर सुल्तान साहब, जनाब लस मोहम्मद पसवाल साहब, जमशेद कठाना साहब और मेरे सामने पंडाल में बैठे हुए मेरे कौम और इसके साथ मेरे पश्तून कौम और मेरे कोहिस्तानी कौम, मेरे तमाम दोस्तों, सबको अपनी तरफ से दिल की अता गहराइयों से सलाम। सलाम के बाद सेक्रेटरी साहब के हुक्म के मुताबिक कि ये प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, हमारा हर दिल अजीज एक कौमी मशर जनाब मलक गुलबर मरहूम के हवाले से मुनक़्क़िद किया गया है। तो सेक्रेटरी साहब ने जो एजेंडा रखा है उस एजेंडे को मद्देनज़र रखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तमाम इंसानों ने एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। अब अगर एक आदमी जाता है इस दुनिया से और वो मशर हो, वो एक इलाके का, एक कौम का एल्डर हो, तो उसकी याद हमेशा रहती है। मेरे दोस्तों, किसी बंदे के मरने से कौम ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो कौम, जो लोग तहरीक का आगाज़ करते हैं और वो तहरीक अधूरी रह जाए तो वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है। मैं गवाह हूँ इस बात का कि आज से चंद साल पहले मेरे कौमी मशर से मुलाकात हुई थी और हमारी एक तवील नशिस्त हुई थी। आज भी मेरे पास उनकी जो कौम के लिए जद्दोजहद, जो स्ट्रगल थी, वो कागजात की शक्ल में मेरे पास महफूज पड़ी हुई है। बहुत याद आती है कि जो अपने इलाके के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए और अपनी मिट्टी के लिए, वो लोग हकीकत में मरे नहीं होते, वो जिंदा होते हैं। और उसकी मिसाल आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो दोस्तों, ये ताज़ियती रेफरेंस है। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह हमारे मशर मलक गुलबर मरहूम को मिट्टी समेत बख्श दे और उसकी औलाद में उनकी कमी पूरी करने की तौफीक अता फरमाएं। मैं अपने आए हुए तमाम अंजुमन गुजरां के मशरान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी दूर से यहाँ पे इस पसमानदा एरिया को आने में कोई झिझक महसूस नहीं की और ये इनका अपनी कौम के साथ मोहब्बत का इजहार है। तो दोस्तों, रेफरेंस ताज़ियत का है। कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए दुआ करें और साथ उनकी ज़िंदगी के वो कारनामे जो उन्होंने अपनी कौम, अपने इलाके और अपने आने वाले नस्ल के लिए सर अंजाम दी हो, अगर किसी के पास इसी तरह कोई मवाद हो तो उस पर बात की जाए। ये कोई तबलीगी पंडाल भी नहीं है कि हम यहाँ पे वो वाला करें या कोई सियासी प्रोग्राम भी नहीं है। तो इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा अपने इन मशरान के सामने कि एक तारीखी का दौर था और हमारे कोहिस्तान के कोहिस्तानी कौम, गुजर कौम और इसी तरह पश्तून कौम के चंद मशरान ऐसे थे जिन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दी है। और उन लोगों में एक मलक गुलबर मरहूम भी था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह
ان کو جنت الفردوس نصیب کرے، اور اس کے ورثہ جو آج پر خوشی اس بات کی بھی ہے کہ حاجی خان بہادر نے ان کی وہ کمی پوری کر دی، تو دوستو یہ ایک اعزاز کی بات بھی ہم سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پہ جتنے دوست آج اس پنڈال میں موجود ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارے مشران بات کریں گے، تو میں اپنی طرف سے اہلیہ جندری کی طرف سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور ہمیں خوشی ہوئی ان کے آنے پہ۔ اور یہاں پہ سیکرٹری صاحب کے حکم کے مطابق میں آخری ایک شعر پہ اپنا بات کا اختتام کرتا ہوں۔ پشتو کا شعر ہے رحمان بابا کا، وہ کہتے ہیں کہ باردارا وہ نہ تلکڑی وریگی، باردارا وہ نہ تلکڑی وریگی، ورکا گونا چھ باردارا وہ نہ سکا۔ اور اسی طرح اردو کا ایک شعر ہے کہ نشہ پہ لا کے گرانا ہے، نشہ مزہ تو تب ہے کہ گر تو شورو قوم پنامد خودے چھ بخون کے مہروبان دے زما دے انجمن کو جران مشرانو پسٹیج ناس جناب جمشید صاحبو، جناب ملک ناصر صاحبو، جناب چودھری ذوالفقار علی بٹو صاحب، جناب خادم شنگلہ عامر سلطان گجر صاحب، اور نورو دا انجمن گجران مشرانو صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت ٹول پسٹیج ناش بانے تشریف فرما دے۔ دا ٹول مشران اور بیا پا دے پنڈال کی چکم ناس مشران دی معززین دی، دا ہر قبیلی سرا دا ہر قوم سرا چی تعلق لالون کی دی، اور بیا دے گیر چاپیرہ دا خواشا دا علاقی اور دا معاشرین راغلین و جوانان و مشران و السلام علیکم۔ زمونگا محترم مشر حجی جلال خان صاحب پنڈال تا رسیدنے دے زاغتا ہرکلے ما ٹول مرکر تخواست چی ہرکلے وطوئے۔ اور زمانگا مشر جلال خان گجر صاحب رو رسیدو اور اسٹیٹ کی موجود دے زاغتا ہم پا خیر رالی ہوئے ما اور دراتو شکریہ دا کو ما رونو دے ٹول نمک کی عزتہ سر اخبر تعارف کو ما زمانم گلیادر گجر دے شانگلی پرون اسودن کے ما اور دا انجمن گجران دا ذلی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ما رونو دا نئے پروگرام چی زمانگا استاسو دے دا زمانگا استاسو پنانی پروگرام کی شرکت ہو زمانگ دا پارا دیر ہو زیاد لازم اور مظلوم ہو۔ میں جمعہ خان لالا سے درخواست کرتا ہوں کہ اویلیاں اقتباس سے آئی ہوئے ہیں وہ سٹیج پہ آ جائیں۔ جمعہ خان ماما او دازه کا مظلوم و لازم خبر ہوا چنانه پروگرام چی دے دا زمان دے او مشر زمان دے مرکزی صدر دے مرکزی قیادت سرپرست اعلی خان بہادر گجر صاحب دے والد گلبرخان مرحوم صاحب مبارک یہ تعزیتی پروگرام دے رونو داغا پا حوالا باندی داغا پا زندگی باندی داغا پا کردار باندی او آغا دا خوم سر چی تم رمینا محبت کری ہوں داغا پا بارا کی با زمانگا مشران ناس دی پا سٹیل بانی داغا پا حالاتو بانی داغا پا حوالا بانی با روشنی آگو آجائی زکا چمانگا دی شنگلی اسودین کی ہوں دیزے کی یو بل سر ناس پاس نہیں ہوں اول زلامنگا یو بل سر ملاقاتو شو دا زمانگا استاذ دا پارا دا فخر خبر دا وہی باز چیشی راپورتا ٹپسان تری نیریگی باز چیشی راپورتا ٹپسان تری نیریگی اور ٹپس تا ضرورت تے چھتے باز سر جنگی گی رونو دا مرخون سے کم کردار
کم مینا محبت د قوم په وسایلو باندې جنگیدو دا غیر دا معلومه شو چې نن په پلانټال کې چې کوم ناس کسان مشران دي معلومه دا چې دا ټول د هغه همزول مشران کېدای شي چې دا هغه همزولتیا کوي او دا ټول چې راجمع شوي دي دا نن د هغه د مینې او د محبت او د هغه د قوم سره د هغه د وسایلو د حل کولو او د مسایلو په رڼا کې چې کوم د دوی سره تعلق مینه محبت ساتلی دی نو د دې نه د دوی د مینه محبت معلومیږي چې دا ډېر ښه سړی او الله پاک دې وبخي او ډېرې قربانیانې د قام له ورکړې وې رونو کے کارکن تھے انہوں نے بس دادبند اور بیاڑ اور دیر کی لوگوں کی تعریفیں سن سن کر میں جوان ہوا ہوں اور سن سن کر میں بوڑھا ہو گیا ہوں ایسی تعریفیں وہ کرتے تھے بیاڑ اور دادبند کے لوگوں کی پھر بات یہ ہے کہ ملک گلبر خان گجر صاحب کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے میں گجرگڑی کا محلہ پوسوال کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق پوسوال خیل قبیلے سے گجروں کے پوسوال خیل قبیلے سے ریفرنس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ریفرنس کے مطابق چلوں گا ریفرنس سے ہٹ کر نہیں بولوں گا عزیزان من یہ جو گلبر خان صاحب ہیں ان کے بزرگ ان کے مشران ان کے جد امجد ہمارے گاؤں سے داد بن گئے تھے اور ان کے بزرگ اور میرے بزرگ ان کا بابا ایک ہی ہے ہم ایک دادا کے اولاد ہیں ایک جد امجد کے اولاد ہیں اس کی تصدیق ہمارے یہ مشران کر سکتے پھر میرے دادا ملک اشرف الدین عرف ببر ملک کے تعلقات سید فقیر ملک کے ساتھ جو کہ دادبند کے رہنے والے ہیں جو کہ باور ملک کے والد صاحب تھے ان کے ساتھ تعلق تھا اور ہمارا باقاعدہ رشتہ داری چونکہ اس لیے آنا جانا تھا مجھے اتنا پتا ہے کہ ملک گلبر خان نے وہاں پر رہتے ہوئے دادبند میں رہتے ہوئے اپر دیر میں رہتے ہوئے انہوں نے اس گجر قوم کے لیے جو قانونی جنگ لڑی تھی اور جو قانونی جنگ جیتی تھی اس کا مجھے پتا ہے انہوں نے وہاں پہ گجر قوم کی خدمت کی تھی یہ ہماری قوم کے ایک بڑے مشر تھے ملک گلبر خان گجر صاحب پھر وہاں سے جب گلبر خان صاحب یہاں پر مائیگریٹ ہو گئے یہاں پر آباد ہو گئے تو یہاں پر بھی انہوں نے اپنی قوم کے لیے تگ و دو جاری رکھی یہاں پر بھی وہ باقاعدہ جرگہ مشران میں شامل ہوا کرتے تھے اور اس علاقے کے صرف گجروں کی نہیں بلکہ تمام اقوام اور اس علاقے کے لوگوں کی انہوں نے خدمت کی ہے بحیثیت ایک مشر کے اور بحیثیت ایک جرگہ کے مشر کے اور ملک گلبر خان صاحب کے میرے والد صاحب کے ساتھ تعلقات تھے اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے بزرگوں اپنے اسلاف اپنے دادا اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں اس گجروں کی آستانے پہ میں حاضر ہوتا ہوں میں دادبند گیا ہوں میں بیاڑ گیا ہوں اور اس سید فقیر ملک صاحب کے پوتے جو ہیں آج کل شہاب الدین مولوی صاحب
शेख शहाबुद्दीन के नाम से, उनके साथ मेरा आना जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे रवाबित, हमारे रिश्ते आज तक गुलबर खान और हाजी खान बहादुर गुजर इनके खानदानों के साथ हमारा ताल्लुक अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहाल है। और ये भी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये खान बहादुर गुजर साहब जो है ये अपने वालिद साहब की नक्श कदम पर चलते हुए ये भी गुजर कौम की खिदमत कर रहे हैं। और इनकी खिदमत का सबूत ये है कि गुजर कौम के खादिमीन यहां पर इस प्रेसिडियम पर सब मौजूद है। ये जो हम अभी काम कर रहे हैं, ये जो जिनके सर पे पगड़ी रख रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको संभालने की रहमत दे और अपनी कौम के लिए खिदमत करने का मौका दे, क्योंकि इसके वालिद साहब की बहुत सारी खिदमत है कौम के लिए। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि खान बहादुर खान साहब भी अपने वालिद मरहूम की तरह ही अपनी कौम की खिदमत करेंगे और उसी तरह ही दिन पूरी रात पूरी अल्लाह पाक इनको तरक्की दे। जिस तरह इनके वालिद साहब का नाम आज हर जुबान पे है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि खान बहादुर गुजर साहब का भी इसी तरह नाम होगा। और हमें खुशी है ये हमारा भाई, हमने जिस जगह पे इनको बुलाया ये उसी जगह पे पहुंचे हैं, कौम के लिए हर जगह पे पहुंचे हैं। मुख्तसर टाइम दपारा मौलाना मुख्तारुल्लाह साहब तफास कोम ची बुदो हाजिरी उकड़ा और जमंगा मशर हाजी गुलबर खान मरहूम रहमहुल्लाह ताला दे ताज़ियत पर मजलिस के ताज़ो शिरकतों को मलक गुलबर खान इंतहाई आजिज़ तबीयत इंसान, यो खाकसार इंसान और यो बेहतरीन इंसान हो जमाद इल्म मुताबिक जगह जमा और सोम दे वखना ताल्लुक नाश्ता और खबर अतर मौजूद हुए तर आखिर वक्त पोरे तरदे चे जनाजे मा खड़े दा और दागा बकबर बांधे मुख्तसर जिक्र आखिरत दो उम्मा बयान करो। रो मलक गुलबर खान यकीनों का चे हर यो इंसान जबिल इंसान पर जुदा के दो बांधे आगत यो गम दुख दर्द में लावेगी। कुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मर्दान की सरजमीन पर खुश आमदेद कहता हूँ। जुम्मन मरकजिया गुजरात पाकिस्तान के सदर जनाब चौधरी असलम परवेज साहब, जनाब अली मोहम्मद साबिर साहब, इनके साथ आए हुए दूसरे मेहमान जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब सदर जुम्मन गुजरात पख्तूनख्वा, जनाब चौधरी नासिर साहब, जनाब मलिक शौकत साहब, जनाब मलिक आसिफ साहब और दीर के दूर दराज इलाकों से आए हुए दूसरे मेहमानों, पंजाब और काबा से आए हुए दूसरे मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूँ। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे कि मलक गुलबर खान की ताज़ियत रेफरेंस पर इधर हमारे साथ शमूलियत फरमाई। मलक गुलबर खान के साथ मेरा उसमें तकरीबन कॉलेज में पढ़ता था, 78-79 की बात है कि वो बोस्तान खान की वफ़ात के बाद मेरे पास आया करते थे। उस वक्त और इधर पूरे शिफ्ट नहीं हुए थे, लेकिन जब मर्दान में शुरू तो लकड़ी के कारोबार से वाबस्ता थे और अक्सर हमारे लोग टक्कर आया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
زما په پندال کې ناس مشران د سر صادر او د سترګو پاڼه او زما د قوم مشران په سټیج کې ناس دي د ټولو ته زړه د کومینه بخیر علی زمونږ د پنجاب نه د انجمن ګجران مشران چې راغلي هغه ټولو ته بخیر علی او دا غي سره سره زمونږ سیاسي مشر چې نن دلته تاسو چې راوړل شوي په خیبر پختونخوا کې دا غي زمونږ ملکند ډیویژن انجمن ګجران صدر فضل قادر ماسٹر صاحب چې هغه تناس ته دا غډېر قربانیان زمونږ سیاسي استاد هم دی او زمونږ د قوم مشر دی دا غټ کردار دی چې هغه په سکول کې ماسٹر دی او اوس یې لپاره ریټایرمنټ مو کو سار روان شي او په خیبر پختونخوا کې کراچۍ کې هغه ته ګډ ځان نسي او انجمن ګجران د ګجر قوم یو ځای راغونډي او دا یو غټ کردار دی په قوم کې زړه ډېر زیات شکریا ادا کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نمخ کې خو زه د خپل تر ګلبرخان کاکا د بچی او داغي د خاندان شکریا ادا کوم چې نن اغي دا تازیاتی پروګرام کې خو دا او په دې پروګرام کې بیا زمنګا میلمانا د پنجاب لراغلی د انجمن ګجرانو مشران هغه چې دلته راغلي دي نو داغیلا د دې صوبې ته کم چې د مرکز دراغلي دي نو اغي ته زه د خپل طرف نه خپل زړه یو ګلدسته پیش کوم او په خیر رالي د پښتو په ژبه کې په خیر رالي ستړي مشي ورته یم. بیا داغه نه بعد زه داغه د بچی شکریا ادا کوم داغه د خاندان شکریا ادا کوم دا چې ډیر غټ غټ خلک لوی لوی خلک زمونږه د تورمار خلک بادر خلک د دې دنیا نه تللې خداغي شاته چې کم بچی پاتې شوي دي اغي د خپل مشرانو هغه یادګار ژوندی نه دی ساتلی نو زلن د دې قوم په وساست سره د دې مشرانو په وساست سره د خپل کشر ورور ته چې کومه پګړۍ په سر کړه نو د ده شکریا ادا کوم او د دې پګړۍ مبارکي ورکوم. خو ای زما وروره نن خو به ته خوشحاله چې ما ته ټوپۍ په سر شوه دا ټوپۍ وړه خبره نه ده دا ډېره یو لوی طاقت تا ته د قوم د انجمن ګجرانو او د دې سره د تمام قوم یو لویه ذمهواري ستا په ککرۍ کې ایښوده او چې نن ماښام ته خپل کټ ته وخېږې دا مېلمانه خواره شي او ته الله ته ځان حاضر ناظر وګڼې نو ته به د دې قوم ذمهواري قبوله کړه ځکه چې دې ډول قوم په تا اعتماد ورکړه زه تاله د دې مبارکي درکوم. د هغې نه بعد زما نه مخکې ښه تعلیم یافته خلکو خبرې کړي دي خو زه د خپل پرنسپل صاحب د لیس محمد د خاندان شکریا ادا کوم چې په مردان کې منګه دی منګله یو ډېر لوی ازغمي شان نوم ساتلی او منګله تعلیم یافته کله راکړې ده چې نن زمونږه اډیشنل آی جي ته ضرور دی او موږ پرې فخر کوو. داسې زمونږ د پنجاب نه زمونږ د انجمن ګجرانو صدر راغلی د دې صوبې صدر راغلی د دې ضلعې مشران راغلي دي د هغې شکریا ادا کوم. خو الله نن زمونږ دا پروګرام چې دی دا سیاسي پروګرام نه دی دا یو تازیاتي پروګرام دی په دې تازیاتي پروګرام به خبره کوو. د دې تازیاتي پروګرام یو یادګار پرېښودل دي یو یادګار ساتل دي یو خپل مشر ژوندی ساتل دي. زما د پلار جایداد زما خوښ دی ټوپک زما خوښ دی موټر زما خوښ دی
خو کور او بنگلې زما خوښه ده خو ماله پکار ده چې زه د خپل پلار میراث هغه میراث دی داغه دوستان او داغه قوم زما میراث دی چې زه د خپل پلار قوم وساتم. نن منګه سردار صاحب را روانو خو زمونږه ډي سي ملکان ډي سي سوات سره کارو او ډېر ضروري کارو هغه زما د لارې نه پاتې شه. زه باسیت د سردار صاحب د یو نوکر په حیثیت دلته راغلی ما تاسې ته خپله حاضري لګوم او د انجمن ګلجرانو د مشرانو نه معافي غواړم چې سردار صاحب په دغه وجه پاتې شوی دی چې هغه د ډي سي سوات سره کارو او یو ډېر ضروري میټینګ و. نو زه ستاسې نه معافي غواړم چې سردار صاحب ځکه نه دی راغلی. ایک دو ترے گل تم دا گزری پر کیا چلوں گا وہ اپنا پنجاب کا مسئلہ اپنا سوات کا پورا اس صوبہ کا مسائل پر ان کے اس ہم نے یہ تنظیم کم جوڑیا ہے وہ انجمنی گجران کم جوڑیا ہے گجریو تھورم کم جوڑیا ہے ہم دا اس گل کی کان کی ضرورت آئی ہمیں دنیا تا جنت کم نے کھیڑا ہے. ہم نہ پکارے ہم دنیا نہ چلا ہم نہ دنیا جن نہ نہیں چلاتی. ہم دنیا نہ جن کے نام لے کر چلائیں خود دنیا ہم نہ نہیں لے کر چلتی. ہم نہ ان نظر پوری دیکھتے کہ چکر ہمارا حق ہے اس مارا حق نہ ہم نہ نہیں جاتی. نہ اس وجہ سے ہم نے مجبور ہو کے انجمن گجران جوڑیو اور گجریو تھورم جوڑیو. مارا تعلیم یافتہ مشرق بٹھائے وہ خاص کر دیر پو کا تعلیم کا دیر پو لگے اوپر آکا گولا مارا تمچی بٹھائے یہ دیر والا یہ جنانی دیر سیلاب ہے سیلاب وہ دیر کا ہر گھر گھر کو وہ جندرائی تلے کے نکا تلے کے آتا ہوتا نہ کڑا گرانا نیچے میں نہ کڑا گران کے وہ آڑائی نہ حساب کر رہی جند اللہ میدان نہ گوت اللہ ساری دنیا نہ ہوتا ہوں سیانوں میں ہوں گھر پر گھر سیانوں میں چمندہ دیر میں کڑی مشکلات ہے. وہ اپنی انجمن گجران کا مشرانہ نہ اپیل کروئے آتے گجریو تھورم کا مشرانہ نہ بھی اپیل کروں میں آتے تمن سونا چیک داریاں ان مشرانہ نہ بھی اپیل کروں میں. مہارا مائے کا کمی ہے تعلیم پورا ہو گیا تعلیم پورا ہو گیا جائداد پوری ہو گئے. ایک کا کمی ہے بے اتفاق کی بے اتفاق ہم نے نہ کڑی ہوئے ہم کدی نہیں کامیاب ہوتا ہم نہ ساری دنیا ہوڑی دیکھے گی. کچھے ہم نے اپنا قوم پر اس میں بانیاں نہ کیوں اس میں پوشوار نہ کیوں اس میں پھاملہ نہ کیوں تو ہم نے ایک کا گل کہی چھے ہم کون ہے الحمدللہ چھے ہم مسلمان ہے الحمدللہ چھے ہم پاکستانی ہے پاکستان کی مٹی ہماری ماں ہے یا پاکستان کی مٹی ہماری ہے یا گجر کی ہے یا گجر کی مٹی ہے اس پر گجر پیدا ہوئی ہے اس پر مرا گو اس دفن بھی لے گو. اے میرا کاما ہم نہ ایک ایک گل پہ اتفاق پکا رہے کہ یہ مٹی ہماری ماں ہے یہ ماں کی خدمت تمہارا حق ہے نو چھے ہماری اتفاق نہ ہے نو ہم نہ اس ماں کی خدمت تک کوئی بھی نہیں چھوڑتو. ہم تمام تنظیمانا پنجاب کا تنظیم ہے آکا وہ سوات کا تنظیم ہے ہوں ایک تنظیم منی ہوں ایک ذات گجرے گجروں کو خادیم ہے ہوں تم بیسا پل نہ کروں میں جکا تم نے اتفاق نہ کرے آتے آج جکڑا مشر کے مارا گلبر خان کا ای دنیا تا چل گیا خود دنیا تا نہیں گیا آج وہ آیات ہے اور وہ کس نے اس کو نایات رکھیا ہے اس بچہ نے تو اس قوم نے ہوئی قوم کی شکریہ دوبارہ بھی ادا کروں میں. ہم نے سارا مسائل ایک کے ٹلی پن پہ حال ہے گا خود ہماری اتفاق ہوئی ہمارا بڑا بڑا جنرل ہے ہمارا بڑا بڑا افسر ہے ہماری بھی اتفاق کی ہے ہم ان نسیانتا نہیں
और ने बेजन खामोश कर रहे उन जर्नेलों ने भी अपील करूए कि ए जर्नेलो तम को इस कौम की इस माँ का इस रक्त को हक है, इस रक्त का खिदमत तो ए जर्नेलो तम जर्नीली में करेगा आते हम खादिमी में करेंगे ऐड करेंगा नुत्तादियों को जो काम इत्तिफाक हुई नुत्तादियों कामयाब है गो वची बुकमे के पड़े में यौ जख्म खोले दे चिबा जूर सी हजार जख्मों ने भी पड़े दी मर बशमा नु मेरा दिल पे का जख्म नहीं एक फट नसीड़ू में नु जुजा उसका पाया फट वे नु किड़ा गम नरम हूँ जंद्राई का गम नरम हूँ नका का गम नरम हूँ मेरा नकाबा मेरी माँ बैठी है मेरा भाई बैठा है मेरी बहन बैठी है नका का बड़ी कोर्ट ने राह बंद किया जन्नरा असेंबली में एक मिंबर नहीं जन्नरा असेंबली में मिंबर है नुद्दा मिल मेरी बेट तो मेरी भाव प्यादा चलाए आते एक गुजर ने उसको बात लिखी एक पंजाब का गुजर ने बात लिखी एक जर्नल ने उसको बात लिखी कि एक कौम दुश्मनी दो भैया की भी है कारचीरी ने के गुनाह किया मासूम ने के गुनाह किया मुड़िया ने के गुनाह किया बीमार ने के गुनाह किया जिस तरह बंदे मेरा भाइयों के तारा इस्लाम में बार होता तारा इस्लाम आज देर को कानून बिल्कुल नहीं एक दुनिया में राह नहीं बंद आते देर में एक निकजा ग्राम पर एक निकी दुश्मनी तेरा बंद है कोई भी ऊपर बात नहीं करतो इस पर मेरा सूबाई हुकूमत तले के मरकजी हुकूमत थोड़ी ना वही करारदाद पेश करूंगे चिदीर पर कातियान हुकूमत थी कदीर पे हुकूमत होती तो कानून होता न बड़ी कोर्ट जनिया करा न कभी न बंद कर दो खुला कानूनियत है और जुल्म है और जुल्म जालिम को हद किसी ने भी नहीं लपियो रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों स्टेज पे जो मेरे इंतहाई मेहमान बैठे हुए हैं भाई हैं बुजुर्ग हैं दोस्त हैं मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम। आज तो सबसे पहले हम जितना भी अपनी रब की ज़ात का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि आज जिस मकाम पे हम पहुंचे हुए हैं इसमें हमारे बुजुर्गों की अंजुमन गुजरा की जो कोशिश जो मेहनत हुई है वो हम सबको तकरीबन अल्लाह जी के हुक्म से नज़र आ रही है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ 2-3 ही बातें करूंगा क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है और मेहमान भी बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो अपने भाई खान बहादुर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जो अल्लाह जी के हुक्म से इनके सर पे पगड़ी रखी गई है, ये बहुत बड़ा एक काम हुआ है इनके साथ। अल्लाह ताला इनको इसको संभालने की तौफीक दे और आप भाइयों को इनका साथ देने की भी तौफीक दे। सबसे पहले मैं अपने सदर मोहतरम चौधरी असलम परवेज साहब से उनको और चौधरी अली मोहम्मद साबर साहब, नासर साहब और आप बुजुर्ग साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों को आपकी अजमतों को ज़हीर चौधरी का सलाम पहुँचे। सबसे पहले हाजी खान बहादुर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके वालिद मलक गुलबर खान गुज्जर साहब की उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका आने वाली ज़िंदगी इसान फरमाए, जन्नत अल फरदौस में जगह फरमाए। और आप सब साथियों के लिए कहूँगा कि उनके लिए दुआ करते रहें और हाजी खान बहादुर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस तरह हमारे भाई जुल्फ़कार भुट्टो साहब ने कहा कि सिर्फ
इस तरह के इकट्ठ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तो सबसे पहले आप अपने आप में इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद रखें और नाम के साथ गुज्जर ज़रूर लिखें। उसकी वजह है कि माशाल्लाह इस इलाके में मुझे तो यही पता चला था कि काफ़ी गुज्जर हैं, लेकिन हम रास्ते में देखा तक कहीं हमें गुज्जर नाम के गुज्जर का बोर्ड या कोई तख्ती या कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो आपसे गुजारिश यही करूँगा, गुज्जर ज़रूर लिखें। उसके साथ साथ जब आप इकट्ठे होंगे, इत्तेहाद होगा, तो इंशाअल्लाह कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकेगी, आपका नुकसान नहीं कर सकेगी। और आपने कोशिश ये भी करनी है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। आपने देखा मानसेरा, एबटाबाद, इससे आगे चले जाए जो शहर है, वहाँ कुछ अरसा पहले, कुछ सालों की बात है, वहाँ भी हालात बहुत बुरे होते थे। लेकिन अंजुमन गुजरा और पंजाब के जो आप समझते हैं आपके साथी अंजुमन गुजरा, वहाँ गए, उन्होंने लोगों को गुजारिश की कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और आपस में इत्तेहाद करें। उसका रिजल्ट आपने देखा कि वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब MNA और MPA अक्सरियत जो है गुजर वो जीतते हैं हर साल। पहले आपको पता कि वहाँ उस वक़्त जो MNA या MPA या जो बरादरियाँ थी, वो आप गुजरों को आपकी चार पाई पे या कुर्सी पे नहीं बैठने देती थी। तब हालात देखो वहाँ का इत्तेफाक होने की वजह। आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आपस में इत्तेहाद रखें, इकट्ठे रहें और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो एक दूसरे की टांगे ना खींचें, बल्कि उसका साथ दें, उसकी मदद करें। व्यूअर्स, ऐसी और बहुत सी खबरों से बाखबर रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचा सकें। और पंडाल में बैठे हुए मेरी कौम के फ़ख्र, मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कौमी मशर मलक गुलबर खान गुज्जर साहब महरूम की ताज़ीती रेफरेंस में यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और उनके लवाहिकीन में से खान बहादुर गुज्जर, जिसने अपने वालिद का ताज़ीती रेफरेंस मुनक़िद करके गुज्जर कौम के अकाबरीन को यहाँ इकट्ठा होने का जो एक टाइम दिया, वक़्त दिया, ये एक अच्छी औलाद होने का सबूत है। अल्लाह ताला खान बहादुर गुज्जर को अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए गुज्जर कौम की खिदमत करने की तौफीक दे, आमीन। मलक आसिफ साहब को पगड़ी पहनाने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से और अपनी पूरी कौम की तरफ से। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात और जो दूसरे भाई हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है ये इनकी बड़ी मेहरबानी है और आप सब लोगों की ये मोहब्बत है। और खान बहादुर साहब का माशाल्लाह बहुत ही गुजर बरादरी की खिदमत करने वाले बंदे हैं। मेरी जब इनसे मुलाकात हुई, इनके वालिद साहब को तो मैं नहीं जानता, आज जब उनकी तारीफ़ सुनी तो मैंने कहा कि मैंने एक अच्छे शख्स से दोस्ती की है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत कौम की खिदमत की है। और इस वक्त ये भी मैं रोज़ाना इनके साथ तकरीबन होता हूँ, ये कौम की खिदमत कर रहे हैं
मेरा ज़रा आज गला इजाज़त नहीं देता तो मैं आपसे ज़्यादा बातें इतनी पुरजोश तकरीरें नहीं कर सकता, लेकिन जो है फिर किसी वक्त किसी स्टेज पर इंशाल्लाह होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दावत खिताब देता हूँ हमारे एक अजीम शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी रहनुमा और हमारी कौम का अजीम रहनुमा जनाब इंजीनियर इफ्तिखार अहमद साहब को मैं दावत खिताब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल के जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताह। आका लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो हमारे पटवारी में कहते हैं कि आई तो मैं देरी ना लां ते कम दिखी तो टुकड़ा दो। संगियो दोस्तों, थारा नाल गोजरी गल करूं या उर्दू? अच्छा, गोजरी थोड़ी जी गल करके फिर मैं उर्दू दर चला जाऊंगा, क्योंकि गोजरी में थोड़ी नाल लेके आया हूँ आज। सारे को पहले मैंने इतनी खुशी हुई है, हाजी खान बहादुर मेरा को आया उस दिहाड़े, उन्होंने आख्या कि अज तमना एक दावत देन आया हूँ। मारा को आया मारो वालिद साहब बड़ा मशहूर मलिक गुलबर खान, ताज़ियती रेफरेंस है, तो ताकि तुम अपनी गल बात करियो। मैं दुआ करूं अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत जगह दे, उन्होंने कब्र ना जन्नत के बाग बनाए। उसके बाद मैं उन्हें थारा को इजाज़त चाह के उर्दू दर जाऊँ। उर्दू चूँकि गुजरी की एक पुत्री ज़ुबान है। उर्दू का पहला शायर वली दकनी जो था वो गोजरी का शायर था, और ये वो ज़ुबान है जो अकबर बादशाह के दौर में इस पे सोचा जा रहा था कि इसको कौमी ज़ुबान बनाया जाए या फ़ारसी को बनाया जाए। तो अकबर बादशाह के हरम में चूँकि फ़ारसी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी तो उस वजह से फ़ारसी कौमी ज़ुबान बनी, वरना हमारी गोजरी कौमी ज़ुबान बन रही थी। भाइयों और दोस्तों, आज जिस वक्त हम यहाँ इस दूर दराज गाँव में खड़े हैं तो हमारा पहला ताल्लुक और रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का। दूसरा ताल्लुक हमारा जो है वो गुजर होने के नाते है, और मैं ये समझता हूँ कि गुजर होना कोई बड़ा एजाज़ नहीं, एक हच्चा और प्यारा और तकड़ा और दलेर मुसलमान होना एजाज़ है। और गुजर क्यों होता है? क्योंकि उसके खून में रग में मजलूम की मदद करने का एक जज्बा होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गुजर जो है एक सुपर मुसलमान भी होता है। मेरी सोच शायद इस कदर ना हो, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि खुदा की कसम जब कभी किसी मजलूम को भी देखा है तो उसके साथ खड़ा हो गया हूं। कल एक कोई पहाड़ी का गुजर था, उसके बारे में सोशल मीडिया पे बात आई कि मेरा भाई कत्ल हो गया और इस्लामाबाद में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो रात को 4 घंटे मेहनत करके आज आईजी साहब से उनकी मैं मीटिंग करवा के आ रहा हूं। इंशाअल्लाह इस वक्त मीटिंग उनकी ख़त्म भी हो चुकी होगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गुजर गुजर करने से हम बड़े बन जाएंगे। हमारे भाई बैठे हुए चौधरी असलम साहब लीडर हैं, हमारे नासिर साहब बैठे हुए, इनको मेरी जिंदगी का पता है, और हमारी जिंदगी का असल मकसद जो है वो लोगों के काम आना है। हमने अपनी क्लाशन कोफे और बंदूकें बेच के अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाना है। हम भी निकले थे इसी हरिपुर के गांव से, नल्ला से। मुख्तार गुजर मरहूम मेरा नाम, भाई का नाम है, अल्लाह जन्नत बख्शे, उसको जानते होंगे। हम पंजाब निकल गए, पंजाब में गुजरांवाला रहे, लाहौर रहे, जद्दा, फिर एक वक्त हमने गुजारा। बुनियादी मकसद आपका और हमारा ये है कि सिर्फ गुजर गुजर करके अपने सीनों को मत लगाइए। अपनी औलादों को तालीम और तरबियत इतनी दें और उनको इतनी पहचान हो कि लोग कहें कि ये देखो ये गुजर जा रहा है और ये गुजर कबीले का है, ना कि वो क्लाशनकोव और बदमाशों के नाम पे बनी हुई फिल्में बनाए। ये हमारा एजाज नहीं है। आप क्यों फख्र करते हैं चौधरी रहमत अली का? कल 28 जनवरी है,
क्या किसी को पता है कि कल क्या हुआ था? कल यौम ललकार था, नाउ नेवर की बात की थी चौधरी रहमत अली ने, कहा था कि अभी वरना कभी नहीं। किसी को पता नहीं, कोई बात नहीं करता। मैंने ये एक तहरीक चलाई है, गुजर प्लेटफॉर्म के रफीक साहब का भी शुक्रिया कि जिन्होंने याद कराया कि हम हर साल इस दिन को उसी तरह मनाएंगे जिस तरह यौम पाकिस्तान होता है। हर साल हम इसको याद करेंगे चौधरी रहमत अली को। मैं कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर के मिला हूं, मैंने चौधरी रहमत अली के नाम की बुक उनको पेश की है। तस्वीर मैंने अखबार पे इसलिए नहीं दी कि कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। आप यकीन करें, चौधरी रहमत अली की डेड बॉडी चौधरी शुजात हुसैन के दौर में पाकिस्तान पहुंचने वाली थी और हमने पहले शोर कर दिया, और जो उसके दुश्मन कुत्ते थे वो सरगर्म अमल हो गए और उसकी डेड बॉडी का ये जो पूरा मिशन था रोक दिया गया। हमारा काम ये है कि जब हम काम कर लें तो उसके बाद शोर मचाएं, लेकिन हमारी आदत ये बन गई कि काम होता नहीं और पहले ही हम छलांगे लगा के लुडियां मारते हैं और हमने कहते हैं हमने ये काम कर लिया, हमने वो काम कर लिया। आप हैरान होंगे कि वो बड़ा लीडर जो इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पर लीडर आता, मैं नाम नहीं लूंगा, जब मैंने उनसे बात की कि ये वादा था आपका, ये दस्तखत थे आपके, वादा किया था आपने कि उनकी डेड बॉडी लाएंगे, क्यों नहीं ला रहे? तो जो मुश्किल उन्होंने मेरे सामने रखी है वो एक बड़ी मुश्किल है। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा मुनीर, मुझे एक और दरिया का सामना था। आपने वादे तो ले लिए, दस्तखत तो ले लिए, लेकिन मैं आपको आज बता के जा रहा हूं, ये लम्हा फिक्रिया है कि अभी हमारी लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। पता नहीं किसी धरने तक जाएगी, पता नहीं कि खून की कुर्बानियों तक जाएगी, पता नहीं कहां तक ये जाएगी। आप ये मत समझे कि तहरीक इंसाफ का हर शख्स जो है वो एक सोच रखता है। सियासी पार्टियों के अंदर लोग मुख्तलिफ सोच रखने वाले होते हैं, किसी को खामखाई तकलीफ होती है। एक मैंने देखा, पूरी दुनिया में मैं गया हूं, पूरी दुनिया फिरी है, पता नहीं क्या होता है कि जब कोई गुजर नाम लेता हूं, मैं अपना तारुफ कराता हूं, तो वहां दाएं बाएं साथ में बैठे हुए लोग जो हैं वो उछल पड़ते हैं। ये आज मुझे बताएं मिश्रान, ये बड़े लोग जो आप बैठे हुए सफेद दाढ़ियों वाले और नौजवान और खूबसूरत लोग, कि क्या तकलीफ है गुजर नाम से लोग क्यों चिढ़ जाते हैं? एक महफिल में बैठा हुआ था तो मैंने बात किया कि मैं गुजर हूं अल्लाह के फजल करम से और पाकिस्तान की खुशबू, तो वो बंदा कहने लगा कि ये क्या फलां क्या, और अपने नाम के साथ वो खोखर लिखता था, अपने नाम के साथ क्या नहीं, अपने नाम के साथ बट, अपने नाम के साथ जट, अपने नाम के साथ कुरैशी लिखने वालों, क्या हो गया कि अगर हम अपनी कौम का नाम लिखते हैं, मुझे बताओ कि क्या हमको लुटेरे लोग थे, हमको डाकू लोग थे? हमने आपको पाकिस्तान दिया, चौधरी रहमत अली ने गुजरस्तान नहीं दिया, पाकिस्तान का नाम दिया था। अगर चौधरी रहमत अली की बात की जाती है, उससे जस्ते खाकी को बात याद लाने की जाती है, तो तकलीफ क्या है? स्टेट सेक्रेटरी साहब, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? आसानी में है। चलो मैं 2 मिनट अब शुरू कर ले, तो आपने कहा था ना कि 2 मिनट बात करनी है, तो अभी 2 मिनट में खत्म करते हैं हम बात। मुझे सिर्फ आपसे ये बात करनी है, आपने बच्चों को सिखाइए, अपने बेटों को सिखाइए। मेरे ग्रैंड सन्स जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते होंगे, लेकिन अपने नाम के साथ वो गुजर लिखते हैं। उनको जब मैंने बताया कि यू आर ब्रेव, यू आर माशाल्लाह, आपका ग्रैंडपा, आप सारे लोग जितनी मेहनत आपने की, पाकिस्तान का नाम आपने दिया। मेरा ड्राइवर मेरे साथ आके पूछ रहा था कि चौधरी रहमत अली क्यों मुतबर्रक हैं, क्यों प्यारे हैं, उसको भी मैंने समझाया। क्या कभी आपने कोशिश की किसी को बताने की? क्या मदरसों में कोई तकरीरें करता है? क्या कोई चौधरी रहमत अली की बात वहां कर रहा है? अगर वो बात नहीं कर रहा तो आज से तहिया कर लें कि जिस तरह एक तबलीग की दावत आप करते हैं, अल्लाह के रास्ते के आने के ऊपर दावत करते हैं, उनके उन लोगों को ये भी बताएं कि इसने मुसलमानों ने हिंद को एक आज़ाद खित्ते की बात की थी। कल 28 जनवरी 1933 की याद आपको दिलाता हूं कि जब उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो चुकी, उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए कि जब हम इनके खानों के बावर्ची खानों में गुजर जाते हैं तो हम पलीत हो जाते हैं। तहरीक पाकिस्तान के एक साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बेटे बैठे हुए हैं, इनको ये इल्म होगा कि जब उस वक्त नौजवान मुसलमान या बच्चा मुसलमान भी हिंदुओं के वो खाने वाली जगह पे चला जाता था तो उसको पलीत समझते थे।
कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब में लिखा कि मैं जब एसी था इंडिया में एक जगह गया तो मुझे एक हिंदू महाराजा ने खाने पे बुला के ये मेरे सामने वही बर्तन रखे जो पिछले साल मैंने खाना खाया था। तो मैंने कहा ये चीज़ें तो मैंने देखी हुई। कहने लगा हम मुसलमानों को जो खाना खा लेते हैं वो बर्तन हम इस्तेमाल नहीं करते, हम साइड पर रखते हैं। ये हालत थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान इसलिए बना था कि आपको ये बताने के लिए कि ये मुतबरक जगह है, ये पाक लोगों को रहने की जगह है। 10 लाख लोग जो हैं वो शहीद हुए थे और 55,000 के करीब पंजाब के अंधे कुओं में नौजवान बेटियां जो वो कूद गई थी, वो सारे मुसलमान थे। इस्लाम के लिए हासिल करना इस मुल्क के बारे में आपको आगे बढ़ना है, गुजरों को आगे बढ़ना है। एक आलम बीबी औरत थी, मेरा ड्राइवर कहता है सर आप ये बात बताया करें लोग। मैंने उससे पूछा जो पंजाब के रेलवे स्टेशन पे 5 औरतें बची थी तो उनमें से एक वो थी। तो मैंने पूछा कि आप कैसे बच गई? तो उसने कहा कि मैंने अपने मुंह के ऊपर गंदगी मल ली। 55,000 औरतें हैं सिखों के। ये ज़िया शाहद की किताब भी पढ़ लें आप। ये थी हमारी कुर्बानियां। 10 लाख लोग कटे थे। वो क्या कहा है पंजाबी के एक शायर ने कि सिर होए कलम कलमा कटियां, इज्जत दी कहनी नालों अजरा बानो सलमा कटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बनया। पाकिस्तान आसान नहीं बना था। चौधरी रहमत अली ने जो कोशिश जारी रखी, आप इसको आगे बढ़ाइएगा। सफ़र मुश्किल है, मंजिल दूर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हौसले जो हैं आपके पस्त नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जनाब हाजी गुलबर ख़ान साहब की ताज़ीती इजलास है ये, तो मैं इसी तक महदूद रहूँगा। आज माशाल्लाह उनके फ़र्जंद ख़ान बहादुर ख़ान साहब को उनकी जगह पे पगड़ी पहनाई गई है। एक अच्छी औलाद के ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। पगड़ी पहनना ही एक ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसको ज़िम्मेदारी को निभाना आगे जाके बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और ये पगड़ी आपकी इसलिए रखी गई है कि आप उनके नक्शे कदम पर चलें और उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाएं। उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी तो औलाद की इज़्ज़त बढ़ेगी। इंसान औलाद इसलिए नहीं मांगता। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अच्छी औलाद, नेक औलाद अपनी माँ बाप के लिए सदका जारिया है। अच्छे अमाल उनके होंगे तो उनको जज़ा मिलेगी, उनके वालिदैन को भी जज़ा मिलेगी। अच्छी औलाद का काम है उनके बख्शिश का ज़रिया बने, ना कि खुदा ना खास्ता कोई औलाद अगर गलत हरकत करती है तो आज तक आपने दुनिया में देखा होगा कि औलाद को कोई नहीं कुछ कहता, सीधे उनके वालिदैन की तरबियत पे बात जाती है कि उनके वालिद भी ऐसे थे, उनके ये भी वैसे थे। तो मेरी गुजारिश है ख़ान बहादुर ख़ान साहब से कि आज आपके ऊपर जो पगड़ी रखी गई है ये आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसको निभाना अब आपके ज़िम्मे है, उनकी नेक नामी को आगे बढ़ाना आपके ज़िम्मे है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये उनके कदम पर चलते हुए बरादरी को भी मुत्तहिद रखेंगे और बरादरी के लिए मशअल राह बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये आगे चलकर उनका नाम रोशन करेंगे। जहाँ तक हमारे मोहतरम मलिक उस्ताद साहब ने पूछा है कि उनके भतीजे या उनके भाई उनके जिससे खाकी को लाने के राह में रुकावट है, तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि एक तो उनके भाई इस वक्त हयात नहीं है कि वो उसकी, और काफ़ी अर्सा पहले फौत हो चुके हैं कि उनकी अपना किसी किस्म की रुकावट हो बने, या उनके भतीजे उनकी, चूँकि उनके भाई की भी औलाद नहीं है इसलिए भतीजे नहीं हो सकते। इनको मिस इन्फॉर्मेशन मिली है। उनकी एक भाभी उस वक्त मौजूद थी, मीडिया ने उसको स्कैंडलाइज करने के लिए उनसे ऐसे खाम में जाके इंटरव्यू किया। वो एक अनपढ़ औरत थी, वो कुछ नहीं कह सकती, तो उसने यही कहा कि बजाय इस्लामाबाद में दफनाने के फैसलाबाद के गाँव नज़दीक एक गाँव है धांधला, कि वहाँ ला के दफनाया जाए। वो बात नहीं है जो चौधरी नासिर साहब ने फरमाया कि जब मजीद निज़ामी साहब शुरू से ही मुखालफ रहे उनके, और उस वक्त भी उन्होंने ही उसमें मुखालफत करके उनकी डेड बॉडी को ना लाने का बाद में चौधरी शुजात हुसैन साहब से फ़ैसला करवाया था। चौधरी रहमत अली साहब की जिस्द खाकी पाकिस्तान में लाना
या इसको स्कैंडलाइज, जैसे उस्ताद साहब ने फरमाया है कि जब भी एक गुजरों का इज्तिमा होता है तो वहाँ पे इसको उजागर किया जाता है या उसको एक इशू बनाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको एक इशू बनाया जाता है। लाने को कोई अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है, कोई भी जाके ला सकता है वहाँ से। लेकिन अंजुमन मरकज़िया गुजरात पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि उनको कौमी एजाज़ के साथ आना चाहिए। वो एक कौमी हीरो है, ना कि गुजरों के है। ना उन्होंने गुजरिस्तान मांगा था, उन्होंने पाकिस्तान मांगा था, सब कौमों के लिए मांगा था। वो तमाम पाकिस्तान की कौम के लीडर हैं। मैं एक मुकर्रर तो नहीं हूँ, जैसे हाजी जलास साहब ने माशाल्लाह बड़े जोशीले तकरीर की है, अमीर सुल्तान साहब ने माशाल्लाह बहुत लंबी और जोशीली तकरीर की है। मैं जो हक़ाइक़ है वही आपके सामने बयान करता हूँ कि चौधरी रहमत अली साहब की हमारे लिए बाहिस फ़ख्र हैं, हमारी कौम के लिए बाहिस इफ्तिखार है कि वो हम में से हैं और हमारे काबर हैं। उनकी जिससे खाकी को के मामलात में CDA से भी बातचीत चल रही है, उनको एप्लीकेशन भी दी हुई है। उनके लिए एक लैंड मुख्तस करने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम चाहते हैं कि ऐसी जगह पे आए कि गुमनाम जगह पे नहीं है। गुमनाम जगह तो अब भी मौजूद हैं, वो इंग्लिस्तान में मौजूद है। मैं वहाँ गया हूँ, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ी है और जब भी मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो मैं उनकी कब्र पे ज़रूर हाज़िर होता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि कौमी एजाज़ के साथ उनकी तस्वीर, उनकी जो है ना डेड बॉडी जो है पाकिस्तान लानी चाहिए और ऐसी मकाम पे हो जहाँ पे हमारे आम लोगों का अप्रोच हो। और या तो हमने उनसे 2 जगह मांगी हैं, एक तो फैसल मस्जिद के साथ और एक शक्कर पड़ियाँ पे। और शक्कर पड़ियाँ पे CDA ने हमारे साथ एग्री किया है। अभी हमारा वो केस चल रहा है, वो इस वक्त वहाँ पे एक लोक वर्सा है, लोक वर्सा के साथ उन्होंने कहा है कि ये जगह आपको इंशाअल्लाह ताला देंगे। जब इंशाअल्लाह ताला जगह मिलेगी तो वहाँ पे आम लोगों का भी आना जाना है और एक मारूफ जगह है और कैपिटल है हमारा, और उस कैपिटल में ही उनके शान है कि वहाँ पे उनको जाके उनके जिससे खाकी को दफनाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह ताला वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन हम इंशाअल्लाह उनको कौमी आज़ाद के साथ वापस लेके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उस पर हमें फ़ख्र होगा और इंशाअल्लाह ताला वो हमारे वैसे फ़ख्र और बुज़ुर्ग हैं हमारे। तो इसके साथ ही मैं जैसे हमारे पेशरो ने कोई बात ऐसी छोड़ी नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इंशाअल्लाह ताला एक गुज्जर कौम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कबीला है। इस वक्त भी माशाल्लाह तकरीबन कम से कम 4.5 से 5 करोड़ हमारी आबादी है। इसका मतलब है कि हम 25% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन के हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के 25% है हम लोग। तो इंशाअल्लाह ताला कि जैसे अंजुमन मरकज़िया गुजरात की कोशिश है, इनका तालीम के सिलसिले में भी हम कोशा रहते हैं। जैसे उस्ताद साहब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अपने ताईं जितनी भी वसाइल हैं उसके मुताबिक हम अपनी कोशिश करते हैं कि कहीं स्कूल कैंप कर दिया जाए, कहीं उस्ताद मुकर्रर कर दिए जाए, कहीं वज़ाइफ दिए जाएँ और बहुत से लोगों को वज़ाइफ दिए भी जाते हैं। हम वज़ाइफ उस तरह नहीं देते जैसे हमारे पेशरो देते थे कि बच्चे के हाथ में पैसे पकड़ा दिए या कोई ऐसे कर दिए। हम लोगों ने अभी जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें हम सिर्फ़ उनको उसकी साल की फ़ीस जमा करवाते हैं, उनको 3 यूनिफॉर्म लेके देते हैं, उनको पूरा सिलेबस लेके दे देते हैं, क्योंकि बच्चे के हाथ में पैसा देना वो ज़ाया करने के बराबर है, इसलिए हम वो नहीं करते। और इंशाअल्लाह ताला हम तालीम के मैदान में अपने ताईं कोशा हैं अंजुमन मरकज़िया गुजरात अपनी पूरी कोशिश के साथ, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि एक न एक दिन समर लाएगी। दूसरी जो अंजुमन मरकज़िया गुजरात पाकिस्तान की कोशिश होती है कि हमने अपनी बरादरी के अंदर, अपनी कौम के अंदर एक अवेयरनेस पैदा कर रही हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी का शाखसाना है जो हमारे पेशरो थे, सदूर थे या जो भी हमारे साबका सदूर थे, उन्होंने अपने ताई इस अलम को बुलंद किए रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही बूटा लगाया हुआ है या वही दरख्त लगाया हुआ जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में आवाज़ सुनी जाती है और पूरे पाकिस्तान में अंजुमन बरादरी कौम को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यूथ हो, अंजुमन मरकज़िया गुजरा हो या किसी भी अंजुमन किसी भी नाम से गुजर कोई तंजीम बनी हुई है, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत से लोगों को इतराज़ होता है कि नहीं ये एक ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। मैंने कहा हर जगह अंजुमन मरकज़िया गुजरा पाकिस्तान नहीं पहुँच सकती, कुछ जगह पे हर इलाकाई जगह पे भी तंजीम बननी चाहिए, मुकामी तंजीमें भी बननी चाहिए,
सूबाई भी तंजीमें बननी चाहिए, ज़िले बननी चाहिए, उसके नीचे तहसील पे बननी चाहिए, उसके नीचे गांव तक जाना चाहिए। हमें ग्रास रूट लेवल तक जाना होगा इसको इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो नहीं कहता कि पिछलों से हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन पिछलों से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे आगे निकल के बहुत सारे ज़िलों में जबकि क्योंकि आज का सोशल मीडिया का दौर है, इसके ज़रिए हम अपना पैगाम घर घर पहुँचा रहे हैं। जो जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पे भी व्हाट्सएप पे माशाल्लाह अंजुमन मरकज़ गुजरां की साइट अपना ग्रुप चल रहा है, उसके ऊपर से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम मकामी ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे और इंशाअल्लाह इसकी तंजीम साजी करेंगे। और इसी का शाखसाना है कि आज आप लोग भी माशाअल्लाह यहाँ पे इकट्ठे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारी अंजुमन मरकज़ गुजरां काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला ये ग्रास रूट लेवल तक जाके अपनी कौम के अंदर एक अवेयरनेस पैदा कर रही है। आज उसी का शाखसाना है कि माशाल्लाह आज लोग अपने साथ अपने नाम के साथ गुजर लिखना शुरू हुए हैं। मुझे फ़ख्र है कि हम एक पाकिस्तान के सबसे बड़े कबीले से तल्लुक़ रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद और जो मसाइल हैं हमारे इंशाअल्लाह ताला वक्त लगता है, हर चीज़ एक वक्त में नहीं हो जाती कि आज हम कहें तो और कल वो चीज़ हो जाए। और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम इसको जो हमारे टारगेट है उनको इंशाअल्लाह ताला हम अचीव करेंगे और हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप एक आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मेरे दोस्त बहुत सारे जो पीछे पहले तकरीर की है उन्होंने कहा जी कि आप अपने लफ्ज़ के साथ नाम के साथ गुजर ज़रूर लिखा करें। मेरी भी यही ताकीद है कि ज़रूर लिखा करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्त आज भी माशाअल्लाह जो हमारे भाई हैं हमारे बड़े फ़ख्र के साथ गुजर कहलाते हैं और गुजर अपने नाम के साथ लिखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, आज नहीं 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल में इससे ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह ताला तमाम लोग हमारे भाई हमारी कौम जो है अपने साथ गुजर लिखेगी और फ़ख्र महसूस करेगी कि जो हमारी कौम के जो साहब का जैसे चौधरी रहमत अली साहब हैं, हमारे सदूर भी हैं, हमारे जर्नैल भी हैं सारे, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है कि हम गुजर कौम से तल्लुक़ रखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला सारी कौम जो है आगे अपना लफ्ज़ गुजर लिखना शुरू होगी। आज तो मुझे जब हम रोड पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं हर जगह पे गुजर लिखा होता है। रोड पे तो मुझे लगता है हम पाकिस्तान में सिर्फ गुजर ही बसते हैं और कोई कौम नहीं बसती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तादाद में बहुत ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तालीम के मैदान में भी आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी कोई हमारे साथ कोई भाई हमें पुकारेगा तो हम इंशाअल्लाह ताला उसका साथ देंगे किसी किस्म के फलाही कामों में, किसी जो बच्चों की तालीम के सिलसिले में, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके हम कदम हैं। मैं अब माशाअल्लाह इनको मशर खान बहादुर खान साहब भी कहूँगा, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये अपने वालिद साहब की जगह पे उनका नाम रोशन करने के लिए उसकी ज़िम्मेदारी उठाई है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनका नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, गुजर कौम जिंदाबाद। थैंक यू व्यूअर्स। ऐसी और बहुत सी खबरों से बाखबर रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम अपनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचा सकें। The Reckoner Television.